السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ وَالْأَعْوَازُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها۔ کل گفتگو چلی تھی کہ ایجاب و قبول پا لیے جانے کے بعد بیع لازم ہو جاتی ہے۔ آج اسی کی استثنائی صورتوں کو بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ایجاب و قبول کا وجود ہو جائے تو بیع لازم ہو جاتی ہے۔ ولا خیار لواحد منہما، اور بائع اور مشتری میں سے کسی کو اختیار نہیں رہتا۔ کس بات کا؟ کہ وہ بیع کو فسخ کر دے، ختم کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد اب مبیع پر مشتری کا حق ہو گیا اور ثمن پر بائع کا حق ہو گیا۔ روپیہ پیسہ جو بھی ہو وہ بیچنے والے کا حق ہو گیا، اور سامان جو بیچا جا رہا ہے اس پر خریدنے والے کا حق ہو گیا۔ تو اب جب حق یہ ہو گیا تو اگر بیچنے والا بیع سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سامان پر مشتری کا حق ثابت ہو چکا تھا یہ اس کو ختم کر رہا ہے، اور اسے اس بات کا اختیار نہیں کہ دوسرے کے حق کو باطل کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے الا من عیبن، ہاں اختیار ہے کس وجہ سے؟ عیب کی وجہ سے، او عدم رویتن، یا نہ دیکھنے کی وجہ سے، اور ایک چیز اور اس میں بڑھا لیجئے جو حاشیے میں ہے، او شرطن، یا شرط کی وجہ سے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، یہ تینوں مستقل اصطلاحات ہیں: خیار عیب، خیار رویت اور خیار شرط۔ یہ تینوں جو چیزیں آئیں، یہ تینوں جو اختیارات آئے یہ شرع سے ثابت ہے، اور آگے مستقل طور پر ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر آ رہا ہے، اس لیے یہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں کی جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والاعواز المشار الیہا لا یحتاج الی معرفۃ مقدارہا۔ بیع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مال اور دوسرا ہے مال۔ دونوں مال ہی ہیں، اسی لیے بیع کی تعریف کرتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کو مال کے بدلے میں بدلنا رضامندی کے ساتھ، یہ بیع کی تعریفوں میں سے ایک ہے۔ تو دونوں طرف مال ہوتا ہے، مگر فرق ہے، ایک طرف
समन होता है, ये भी माल है, और एक तरफ मबी होता है, ये भी माल है। मबी में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं और समन में रुपया पैसा या जो असल समन है सोना चांदी, ये चीज़ें होती हैं। तो अब ये बै में इस्तेमाल होने वाली ये दोनों चीज़ें मबी और समन, इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। फरमाते हैं वल आवाजुल मुशारो इलेहा, बै में जो सामान हो, जिस सामान की तरफ इशारा कर दिया गया हो, जैसे गेहूं का ढेर है या फिर खजूर की टोकरी में खजूर रखी हुई है, चावल है ना, जो बदले में आदमी खरीद रहा है, तो अब उसको बेचा। जैसे ये कहा कि ये टोकरी में चावल रखे हुए हैं, तो कहता है इसको मैं बेच रहा हूं, ठीक है, कितने में? 10 रुपए के बदले में, मिसाल के तौर पर। तो अब ये जानना जरूरी नहीं है कि इसमें चावल कितना है, बै को जायज करने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है। यानी ये भी मुमकिन है टोकरी में 10 किलो हो, ये भी मुमकिन है 20 किलो हो। तो अगर 10 किलो है तो ये माना जाएगा कि ये 10 ही किलो 10 रुपए के बदले में है। 20 किलो है तो ये माना जाएगा कि ये 10 रुपए के बदले 20 किलो है। खरीदार को कुछ सस्ता या महंगा हो सकता है, उसे इख्तियार है, चाहे तो कबूल करे या ना करे, कल आप पढ़ चुके इसको। तो गोया सामान जिसकी तरफ इशारा कर दिया गया हो, उसकी मिकदार जानना जरूरी नहीं है बै के जवाज के लिए कि कितनी है। इशारा कर दिया गया तब वो मुअय्यन हो गया। असल मामला क्या है, मिकदार की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि इख्तिलाफ ना हो जाए। अब जब यहां सामान ही मौजूद है और ये कह दे रहा है कि इसको बेच रहा हूं, तो चाहे वो जितना हो, गोया बेचने वाला उतने ही दाम पर उसे बेचने के लिए रजामंदी जाहिर कर चुका है, और चाहे वो जितना हो, खरीदने वाला गोया उतना पैसा दे करके वो सामान खरीद रहा है। तो दोनों की तरफ से रजामंदी पाली गई, लिहाजा अब यहां निजा का कोई मामला नहीं हो सकता। इसीलिए कहा वल आवाजुल मुशारो इलैहा, और वो सामान जिसकी तरफ इशारा किया गया हो, उसकी मिकदार की मारिफत की हाजत नहीं है बै के जायज होने में, बै के जवाज के लिए। ये तो हो गया एक मबी वाला हिस्सा। समन वाला हिस्सा तो कहते हैं समन बहरहाल मिकदार उसकी बताना जरूरी है। हाथ में सिक्का है, कह रहा इसके बदले में खरीद रहा हूं, और उसको जेब में रख लिया, दूसरा सिक्का दे दिया तो भी चल जाता है। तो इससे समझ में आता है कि सामान जो होता है मुतय्यन करने से मुतय्यन हो जाता है। हाथ से इशारा कर दिया कि इस टोकरी वाले गेहूं को बेच रहा हूं, तो खरीदार को वही गेहूं देना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा देना चाहे तो खरीदार को हक है, चाहे तो ले चाहे तो ना ले। और पैसा है कि बेचने खरीदने वाला कह रहा है कि मैं हाथ में लेकर के इसके बदले में खरीदना चाह रहा हूं। अब बेचने वाले ने सामान उसको दे दिया, खरीदार ने वो सिक्का जेब में रख लिया और दूसरा सिक्का निकाल करके दे दिया उतने ही दाम का, तो उसे इख्तियार है, और ले बेचने वाले को इख्तियार नहीं रहेगा कि वो कहे कि नहीं हमको वही सिक्का चाहिए। इसको आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि दराहिमो दनानीर मुतय्यन करने से भी मुतय्यन नहीं होते। आप खुद देखिए ना, अपने उर्फ में 100 रुपये का नोट लेकर के कोई सामान खरीदने जाइए, दुकानदार को दिखाइए कि इस 100 के नोट के बदले में हमको ये सामान दे दो। दुकानदार ने सामान दिया, आपने 100 का नोट जेब में रख लिया, दूसरा 100 का नोट निकाल करके दे दिया। ना आपको कोई तकलीफ है देने में, ना दुकानदार को कोई हिचकिचाहट है लेने में। ये आप अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी मुल्क में, किसी इलाके में कई तरह के सिक्के चल रहे हों, कई तरह के नोट चल रहे हों, तो ऐसी सूरत में वहां मुतय्यन कर देना, बयान कर देना जरूरी है। मिसाल के तौर पर हज करने के लिए मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जाते हैं, इत्तेफाक ये है कि वहाँ दुकान वाले हिंदुस्तान का रुपया भी ले लेते हैं, बड़ा नोट 500 और 2000 का,
ये नोट भी ले लेते हैं और रियाल भी ले लेते हैं और डॉलर भी ले लेते हैं, पाउंड भी ले लेते हैं, दीनार भी ले लेते हैं, दिरहम भी यानी जितने सिक्के अरब ममालिक में राइज हैं सब वो कबूल कर लेते हैं उमूमन। ठीक है। तो अब अगर वहां आपने खरीदारी की है और आपने कहा 10 के बदले में, है ना, 10 के नोट के बदले में ये सामान हमको दे दीजिए, तो अब आपको आपके ये कह देने से काम नहीं चलेगा, बै दुरुस्त नहीं होगी। वजह उसकी क्या है कि उस मुल्क में 10 का नोट हिंदुस्तानी भी चलता है, 10 का नोट दूसरे ममालिक का भी चलता है और दोनों की मालियत में फ़र्क है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का 1 रुपया, अरब का 1 रुपया हिंदुस्तान के तकरीबन 20 रुपये के बराबर है। तो अब अगर आपने 10 का नोट कहा है और हिंदुस्तान वाला देंगे तो गोया उसका 50 पैसा हो गया, और वो समझ रहा है कि हमको अरब वाला दे रहा है, तो गोया आपने 10 ही रुपये का नोट दे करके 200 का माल खरीदा। ये इख्तिलाफात बहरहाल हो जाएंगे। इसीलिए फरमाते हैं वल असमानुल मुतलक़तो, मुतलक समन जिसकी कोई तायीन न की गई हो। अब अगर हाथ में उसके है मौजूद वो नोट तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बै हो जाएगी, है ना। लेकिन हाथ में मौजूद नहीं है तो गोया मुतलक है। हाथ में मौजूद होगा तब तो कहेगा इसके बदले में खरीद रहा हूं, तय हो गया कि गोया ये दिरहम है, दिनार है, जो भी सूरत हो, जो है मौजूद वही है, उसी के बदले में ले रहा है, तो बेचने वाले को कोई शुबा नहीं होगा। लेकिन अगर इशारा भी नहीं किया और मुतलक बोल दिया और कई तरह के नोट चल रहे हैं तो दिक्कत होगी। इसीलिए फरमाते हैं मुतलक समन ला तसिहो, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसके जरिए बै दुरुस्त नहीं होगी, ये मतलब है। इल्ला अन तकून मारिफत मारूफत अल क़द्र व सिफते, मगर जबकि उसकी मिक़दार और उसकी सिफत मारूफ हो। यानी आप मुतलक बोल रहे हैं लेकिन उस उर्फ में मुतलक बोल करके जब मुतलक बोला जाता हो तो ऐसी सूरत में ये तय हो कि कौन सा नोट मुराद है, उमूमन ये मारूफ व मशहूर हो, है ना, तो ऐसी सूरत में गोया दुरुस्त हो जाएगा। वयजूज़ुल बैअ बिसमन हालिन व मुअज्जलिन, और बै दुरुस्त है फौरन नकद कीमत दे करके, नकद कीमत के बदले में या उधार कीमत के बदले में, है ना। सामान अभी ले लिया, पैसा बाद में देगा, ये भी दुरुस्त है। लेकिन कब? इज़ा कानल अजलो मालूमन, जबकि वक्त जो है वो मालूम हो, कितने दिनों बाद देगा ये मुतय्यन हो, मालूम हो। क्योंकि अगर ये मालूम नहीं होगा तो जहालत पाई जाएगी, और जहालत पाई जाएगी तो ऐसी सूरत में ये मुनाज़ात का सबब बनेगा। वो 2 महीने के बाद मांगेगा और देने वाला कहेगा 4 महीने की मोहलत हमने सोची थी, तो इस वजह से ये दिक्कत पैदा होगी। वमन अतलक़ समन फिल बैअ काना अला गालिब नक़दिल बलद, ये मारूफ वाली जो सूरत थी उसी को फिर दोहरा रहे हैं। वमन अतलक़ समन फिल बैअ, जो बै में समन को मुतलक रखे, काना अला गालिब नक़दिल बलद, तो वो शहर के गालिब नकद पर, गालिब सिक्के पर महमूल किया जाएगा। मतलब शहर में जो सबसे ज़्यादा राइज सिक्का है उसी की तरफ उसको फेरा जाएगा। जैसे अभी गुफ्तगू आई थी अरब की, मक्का मदीना की, तो वहाँ उमूमन गालिब जो है वो रियाल है, लिहाजा अगर मुतलक बोलेंगे तो रियाल की तरफ जहन जाएगा और रियाल ही पर उसको महमूल किया जाएगा जब दोनों के दरमियान मुनाजात हो। और अगर कहीं बराबर चल रहे हों तो दिक्कत होगी। कई कहते फ़ैन कानतिन नुकूदो मुख्तलिफतन फल बैअ फासिदुन, अब अगर नुकूद मुख्तलिफ हों, कई तरह के सिक्के हों, मिकदार में, मालियत में, और साथ ही साथ ये है कि रवाज में सब के सब यकसा हों, बराबर हों, तो कहते फल बैअ फासिदुन, तो जाहिर सी बात है यहाँ मुनाजात पैदा होगी, लिहाजा बै फासिद होगी। खरीदार कहेगा हमको इतने के बदले में चाहिए, बेचने वाला कहेगा हमने ये मुराद ली थी, वो कहेगा हमने ये मुराद ली थी, तो फिर ऐसी सूरत में इख्तिलाफ पैदा होगा, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। इल्ला अय्युबय्यिन अहदहा, मगर ये कि उनमें से किसी एक को बयान कर दे,
جب ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دے گا کہ فلاں سکہ مراد ہے، فلاں روپیہ مراد ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بیان کرنے کے بعد اب یہ بے درست ہو جائے گی۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی سمن اور مبی کے حوالے سے۔ اب مبی کے حوالے سے کچھ اور گفتگو کریں گے دوسری حیثیت سے۔ یہ گفتگو تھی مبی کی اس حیثیت سے کہ مبی معین کر دیا یا نہیں کیا، اس اعتبار سے گفتگو تھی۔ سمن متعین کیا یا نہیں کیا، اس اعتبار سے گفتگو تھی۔ اب یہاں دوسرے اعتبار سے کہ کسی بھی سامان کی بے مبی کو اگر کوئی بیچنا چاہے تو کیسے بیچ سکتا ہے، تول کر کے، ناپ کر کے، اندازے سے، کیا صورت اس کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو اب یہاں سے شروع ہوگی۔